السلام علیکم۔ TNN کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا کی ممکنہ دوسری لہر، فعال مریضوں کی تعداد 8,000 سے بڑھ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 8 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6,588 ہو گئی۔ موٹر وے زیادتی کیس، ملزم عابد ملہی کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے گجر پورہ زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کی گرفتاری پر IG پنجاب اور ان کی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا۔ الیکٹرک کے تانے بانے ممبئی سے ملیں گے، چیف جسٹس کہتے ہیں تمام لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی لوڈ شیڈنگ کیس کی سماعت کی۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جن مشکلات کا سامنا ہے، اس کا عمران خان کو ادراک تک نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم اپنے آپ کو جمہوریت کہے، وہ کیا قانون پر یقین رکھتا ہوگا۔ کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 23.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سے 41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ کراچی کے ڈومیسائل پر نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے، وفاقی اور صوبائی حکومت کراچی پر توجہ دے۔ چینی سوشل میڈیا اپلیکیشن ٹک ٹاک پر لگائی گئی پابندی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ 15 اکتوبر کو سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوگی۔ کینیڈین شہریوں نے حکومت کو اخراجات میں احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ 67% شہریوں کا کہنا ہے کہ خسارہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ایسے میں اخراجات کو کم کیا جانا چاہیے۔ ٹورنٹو کی ایک مسجد دھمکیاں ملنے کے بعد پیر کی رات بند رہی۔ کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے واقعے پر تشویش کا اظہار۔ میئر جون ٹوری کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کینیڈین شہریوں کے لیے حکومت کا نیا مالی امداد کا پروگرام، جو تکنیکی خرابی کی وجہ سے عارضی طور پر روک دیا گیا تھا، بحال کر دیا گیا۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,82,839 ہو گئی۔ عوام کی مشکلات حل نہ کرنے اور ناقص کارکردگی پر کم جونگ ان رو پڑے۔ کم جونگ ان نے کرونا وبا کے ہنگامہ خیز دور میں ملک کی بہتر رہنمائی نہ کر پانے میں ناکامی پر بھی معافی مانگی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس انفیکشن سے اموات کی تعداد 10,85,000 سے تجاوز کر گئی۔ کرونا کی اس دوسری لہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,700 افراد ہلاک، جبکہ 2.5 لاکھ افراد میں وائرس کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے 11 دن بعد ہی انتخابی مہم میں واپس آ گئے۔ فلوریڈا میں بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ طاقتور محسوس کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی حجاب کرنے والی پہلی میئر نے امتیازی سلوک سے تنگ آ کر لیبر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاہ فام اور لسانی اقلیت سے تعلق رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے میری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 531 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,19,848 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ مریضوں کی تعداد 8,651 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 531 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,19,848 ہو گئی۔
NCOC के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद 8,651 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,04,609 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 8 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,588 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,534, पंजाब में 1,08,92, खैबर पख्तूनख्वा 38,367, इस्लामाबाद में 17,428, बलूचिस्तान में 15,441, आज़ाद कश्मीर 3,131 और गिलगित बल्तिस्तान में 3,555 हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज्जरपुरा ज़्यादती केस के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद मल्लही की गिरफ्तारी पर IG पंजाब और उनकी टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम आबिद मल्लही को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज्जरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्लही की गिरफ्तारी पर IG पंजाब और उनकी टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। इस मौका के ऊपर मैं पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। CIA मॉडल टाउन लाहौर ने मोटरवे ज्यादती केस के मुल्जिम आबिद मल्लही को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा के रूबरू पेश किया। पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने मुल्जिम आबिद मल्लही को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के लिए जेल भेज दिया। जेल में आबिद मल्लही की शनाख्त परेड होगी और इसका DNA टेस्ट भी किया जाएगा। दूसरी जानिब ज्यादती केस के दूसरे मुल्जिम शफकत को भी जिस्मानी रिमांड पर 28 अक्टूबर तक पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। जराये का कहना है कि पंजाब पुलिस को 34 रोज तक तिगनी का नाच नचाने वाला आबिद मल्लही पुलिस छापे से फरार होने के बाद ननकाना से भागकर लिफ्ट लेकर फैसलाबाद आया। फैसलाबाद से मांगा मंडी अपने वालिद के पास पहुंचा। वहां से एक शहरी से लिफ्ट लेकर चिन्यूट की तरफ चला गया था। मुल्जिम ने शहरी को बताया कि वो घर से लड़कर आया है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। लिफ्ट देने वाले शहरी ने मुल्जिम को गांव के एक बंदे के पास काम पर रखवा दिया था। मफरूरी के दौरान आबिद गांव में भैंसों के लिए चारा वगैरह का काम करता रहा। मुल्जिम ने वहां से 800 रुपए लिए और वापस मांगा मंडी अपने वालिद के पास पहुंचा। इस दौरान मुल्जिम का वालिद इलाके के मुअज्जिज खालिद भट्ट से आबिद को पुलिस के सामने पेश करने की दरख्वास्त करता रहता था। खालिद भट्ट ने ही मुल्जिम की गिरफ्तारी में CIA मॉडल टाउन की मदद की। खालिद भट्ट की गाड़ी में ही आबिद को CIA मॉडल टाउन मुंतकिल किया गया। 9 सितंबर को लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने का वाकया पेश आया था। एक मुल्जिम शफकत को वाकये के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दूसरा मुल्जिम आबिद मल्लही मफरूर था, जिसे गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स दिए हैं कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फ़ायदा उठा रही हैं कि इलेक्ट्रिक के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स दिए कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं कि इलेक्ट्रिक के ताने बाने मुंबई से निकलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में बिजली का मसला कितना हल हुआ। आपने आज बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं। आपकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नेपरा और पावर डिवीजन वाले PTDC और NTDC के महकमे क्या कर रहे हैं? निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। ना हुकूमती इदारों में सलाहियत है, ना कुछ करना है, ना कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाब है? आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्ट्रिक के MD उधर ही हैं। आपका क्या इरादा है? कराची को कब बिजली देंगे? CEO के इलेक्ट्रिक किधर हैं? CEO साहब, आप अभी तक ओहदे पर ही हैं। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? वकील के इलेक्ट्रिक अली जफर ने बताया कि के इलेक्ट्रिक के 9 डायरेक्टर्स हैं। यह सऊदी और कुवैती बिजनेस ग्रुप्स का इश्तिराक है। दोनों ग्रुप्स में 400 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलाखिर इन ग्रुप्स के पीछे मजीद ग्रुप्स होंगे। आखिर में ये कंपनी मुंबई में लैंड करेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून व माहौलियात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ कहना है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को जिन मुश्किलात का सामना है उसका इमरान खान को इदराक नहीं है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून और माहौलियात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक कहना है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को जिन मुश्किलात का सामना है उसका इमरान खान को इदराक नहीं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने सिंध असेंबली के कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा, हमारे मुल्क का मसला यही है कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ अपने लिए हो रहा है। जो वज़ीर आज़म अपने आप को जमहूरियत कहे वो क्या कानून पर यकीन रखता होगा। इस जुमले से उन्होंने बता दिया कि वो अपनी जात से आगे नहीं सोच रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि NFC और आईनी तकाज़ों को सही हक नहीं दिया जाता और वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं जमहूरियत हूँ। उन्होंने जमहूर का जो ख्याल किया है, जमहूरियत में आइन की पासदारी करना भी शामिल है। जमहूर को पता है हमारा क्या हाल है और जमहूर इसलिए सड़कों पे है इस वक्त। आवाम को पता है, बाग को पता है, जो गुल बैठा है ना वो जमहूरियत, वो वज़ीर आज़म, उसको नहीं पता, उसको एहसास नहीं है। तो मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश कर रहा हूँ कि वो एहसास उनको दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि अक्टूबर का महीना बहुत अहम है क्योंकि अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को लाने की इब्तिदा हुई थी। जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी तो आवाम के एक समंदर ने उनको खुशामदीद किया। वो पाकिस्तान के आवाम की जंग लड़ने आई थी। 18 अक्टूबर को जमहूरियत की खातिर पीपल्स पार्टी के जयालों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसीलिए 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जलसा किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 18 अक्टूबर को अपना जलसा करने जा रही है, PDM के जो हमारे दोस्त उन जमहूरियत पसंद शुहदा की कुर्बानियों को जो खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं, उनसे तजदीद अहद व वफा करने जा रहे हैं, वो जमहूर की खातिर करने जा रहे हैं। कराची हीट वेव की लपेट में आ गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म, कभी शदीद गर्म और खुश्क रहने का भी इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची हीट वेव की लपेट में आ गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक शहर में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म, कभी शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ खुश्क हवाएं चली। शुमाल और शुमाल मशरिक की जानिब से चलने वाली खुश्क हवाओं के बाइस रात में खुनकी रही, जिसकी वजह से कम दर्जा हरारत भी 2 डिग्री गिर गया। शहर कायद का कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि कराची में शुमाल से 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनमें नमी का तनासुब 12% है। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची के शहरियों को कराची के डोमिसाइल पर नौकरियां नहीं मिलती, जबकि मुल्क भर के डोमिसाइल वाले लोग नौकरियां यहां हासिल करते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची के शहरियों को कराची के डोमिसाइल पर नौकरी नहीं मिलती, जबकि मुल्क भर के डोमिसाइल वाले लोग नौकरियां यहां हासिल करते हैं। खुसूसी अदालत के रूबरू बानी मुत्तहदा की इश्तिहाल अंगेज तकरीर के 27 मुकदमात की समाअत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, 1100 अरब का एक नोटिफिकेशन निकला है। अगर 1100 अरब को 3 साल में तकसीम करें तो 99 करोड़ रुपए रोज खर्च होना चाहिए। कोई काम नजर नहीं आ रहा, मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों को कराची की डोमिसाइल पर नौकरी नहीं मिलती, मुल्क भर के डोमिसाइल वाले लोग नौकरियां यहां हासिल करते हैं। कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची पर तवज्जो दे। के इलेक्ट्रिक को ठीक होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के ऐलानात के बावजूद रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम की तलवार फिर लटकाई। कराची और हैदराबाद वाले कहां जाएं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को आगे बढ़ना चाहिए, वहां कुछ नहीं हो रहा। ओपोजिशन की तहरीक की इखलाकी हिमायत करता हूं। सिलेक्टिव इंसाफ हो रहा है। MQM की मौजूदा क़यादत सूबे का मामला लेकर किस मुंह से आवाम में जाएगी? मेरे जैसे कारकुन के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि क्या मेयर कराची से 40 अरब रुपए का हिसाब लिया गया? ये लोग किस मुंह से आवाम में जाएंगे? पहले इखलाकी जवाब तो पैदा करें। कराची के सिंधी बोलने वाले भी मेरे साथ होंगे, क्योंकि हम बुनियादी मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान में चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक की पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की जानिब से चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक पर लगाई गई पाबंदी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। पाकिस्तान में चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक की पाबंदी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त में कहा गया है कि टिकटॉक पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क में तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद टिकटॉक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। चंद लोग ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी ID को ब्लॉक किया जाए। दरख्वास्त गुजार का इस्तदा करते हुए कहना है कि तमाम अकाउंट चलाने वालों के अकाउंट बंद करना ठीक नहीं, अदालत टिकटॉक पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म दे। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी गई है, जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर को सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत होगी। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।